اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں بچوں کہ ہم یہ خاکہ پڑھ رہے ہیں، حالی کا خاکہ۔ حالی کا خاکہ جو مولوی عبدالحق صاحب کا لکھا ہوا خاکہ ہے، اور ہم نے اس کی پڑھائی صفحہ نمبر 66 پہ کی تھی۔ آج ہم صفحہ نمبر 67 پہ اس کا جو آخری پیراگراف ہے، تو اس سے ہم اس کی پڑھائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کتابیں کھولیے اور اپنی نظریں میری آواز سنتے رہیے اور اپنی نظریں اپنی کتابوں کی طرف دوڑائیے۔ ہمارے ہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کبھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اس سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے۔ شاعر تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے، اور جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب بھی اسے یہی فرمائش کرے گا، اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر فرمائش ہی اپنے کلام سے محظوظ فرمانے لگتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے۔ بعض شاعر تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کی آرزومند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام اس کی زبان سے سنیں۔ لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائش کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے اور اکثر یہ عذر کر دیتے تھے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے۔ آج کل تو ہمارے اکثر شاعر ترنم یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں ان میں بعض طرح سے چشم، آبرو، ہاتھ، گردن اور جسم سے کام لیتے، اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا سیدھے سادے طور سے پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا۔ مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی، جو بہت بلند آواز، مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتی تھی۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے رہا نہ گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ سر سید تو خیر اس زمانے میں مورد لن تن تھے ہی، اور ہر کس و ناکس ان کے منہ آتا تھا، لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ پڑی وہ حالی تھی۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشانہ ملامت بن گئی تھی، اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا دی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، وہ معمولی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور تن و تریز کی صدا آنے لگی۔ اور پنچ میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا۔ وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ پھکڑ اور بفیدیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ اب تر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پامال ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں گی۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے، لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکالا۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، یہ مولانا کا شعر ہے۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئی، اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے، نقل کرنے لگے۔ گل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا۔ کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے۔
और ये दो खूबियाँ उनके कलाम में कामिल तौर पर पाई जाती हैं। ये अदीब का बहुत बड़ा कमाल है। ये बात सिर्फ उसातिज़ा के कलाम में पाई जाती है, वरना जोश में आखिर आदमी सररिश्ता एतदाल खो देता है और बहक कर कहीं का कहीं निकल जाता है और बजाय कुछ कहने के चीखने चिल्लाने लगता है। अब मैं इसका सलीस में बताऊं, माना में बताऊं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं, हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया, हमारे यहाँ ये अब कानून सा बन गया, तरीका सा बन गया है, हमारे यहाँ रिवाज सा बन गया है कि जब कोई किसी शायर से मिलता है, अगर कोई किसी शायर से मिलता है तो इससे अपना कलाम, हाँ बताइए शायर साहब, अपना हजरात अपना कलाम सुनाइए। शायर तो शायर इसलिए फरमाइश करता है, ये दो शायर आपस में जब मिलते हैं तो एक शायर इस दूसरे शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि फिर बाद में ये मुझे अपना कलाम सुनाने के लिए कहेगा, कि इसे भी अपना कलाम सुनने का शौक गिदगदाता है, अंदर दिल में गिदगदाता है, ये ख्वाहिश रहती है कि ये मुझे अपना कलाम सुनाने की ख्वाहिश फिर करेगा, और जानता है कि उसके बाद मुखातिब भी उससे यही फरमाइश करेगा, और बाज़ अवक़ात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश ही अपना कलाम उससे सुनाने लगते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश कहते हैं कि शायर उनसे इसकी तवक्का रखता है, इसकी उम्मीद रखता है। बाज़ शायर तो इसलिए बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद, ख्वाहिशमंद होते हैं। कभी कभी जो बड़े शायर होते हैं उनसे उनके आरज़ूमंद लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ कलाम उनका सुनाएं, कि किसी बड़े शायर का कलाम इसकी ज़बान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी यही फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाती थी, और अक्सर ये मुआज़रत कर देती थी कि मेरा हाफिज़ा, मेरा याददाश्त जो है वो कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। ये महज उज़्र लंग झूठा कमज़ोर बहाना ही न था। उज़्र लंग झूठा कमज़ोर बहाना, इसमें कुछ हकीकत भी नहीं थी, लेकिन असल बात ये थी कि वो खुदनुमाई से बहुत बचते थे। खुदनुमाई यानी अपने आप में बड़ाई दिखाना, या अपनापन दिखाना, उसको कहते हैं खुदनुमाई से बहुत बचते थी। आजकल तो हमारे अक्सर शायर तरन्नुम से या ख़ास तौर पर गाकर पढ़ते हैं, उनका जिक्र नहीं, लेकिन जो तहत्तुल लफ्ज़ पढ़ते हैं उनमें से बाज़ तरह से चिश्म। अब अगर कोई बगैर तरन्नुम पढ़े, तहत्तुल लफ्ज़ कहते हैं बगैर तरन्नुम पढ़े, लेकिन वो तरह से चिश्म आबरू, कभी आंखों से इशारा दिखाते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी गर्दन हिला, या जिस्म के ऐसे हरकत करते हैं, बाज़ अगर ऐसी सूरतें बनाते हैं कि खुद ही हंसी आ जाती है, बेअख्तियार हंसी आ जाती है। मौलाना सीधे साधे तौर से पढ़ते थे, अलबत्ता मौका के लिहाज से इस तरह अदा करते थे कि उससे असर पैदा हो, यानी सुनने वाले पे असर इसका पैदा हो। एक बार अलीगढ़ कॉलेज में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा चल रहा था। मौलाना का मिजाज कुछ अलील था, कुछ बीमार थे। उन्होंने अपनी नज़म पढ़ने के लिए मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहब को दी कि मेरी नज़म पढ़िए, जो बहुत बुलंद आवाज़ और मुकर्रर और पढ़ने में कमाल रखते थे। सलीम साहब एक ही बंद पढ़ने पाए थे कि मौलाना से रहा न गया, नज़म उनके हाथ से ले ली और खुद पढ़ना शुरू कर दी, और इस ज़रा सी देर में सारी मजलिस में कोहराम समझ गया। सर से तो खैर उस ज़माने में मोर्द लंतन थी, जिसकी मलामत की जाए। मोर्द लंतन, वो मालूम है क्यों मोर्द लंतन थी? उसने मुसलमानों को अंग्रेज़ी पढ़ने की सलाह दी थी, इसी वजह से वो मोर्द लंतन थे। यानी उस पर हुक्म कुफर भी चलाया गया था उस ज़माने में, और हर कस नाकस उनके मुँह आता था, जो भी उसे मिलता था उनकी मुखालफत कर देती थी। लेकिन उसके बाद जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ात की बौछार पड़ी वो हाली थी। उसके बाद जब एतराज़ात सर सैयद पे पड़ी, उसके बाद जितने भी ज़्यादा एतराज़ात किए गए वो हाली पे किए गए। हर वो शख्स जिसका ताल्लुक सर सैयद अहमद खान से था, ये इस वजह से कि इस हाली का भी ताल्लुक सर सैयद अहमद खान से था, यूं ही मरदूद यानी रद्द किया हुआ। इन्होंने अपने दीन को छोड़ा है, मरदूद रद्द किया हुआ। इस पे उनकी शायरी जो आम रंग से जुदा थी और निशाना मलामत बन गई थी, यानी इनकी शायरी बाकी शुरा हजरात से नहीं मिलती थी, इसलिए वो मोर्द इल्ज़ाम हो गई थी। यानी उस पर बिल्कुल ये तनकीद का निशाना बन गई थी वो, और मुकदमा शायर शायरी ने खासी आग लगा दी। जब मौलाना हाली साहब ने
मुकदमा शायर शायरी की किताब निकाली लिखी तो वो उसने आग लगा दी, उस पर ऐसी बूछाड़ पड़ी कि खुदा ही जाने, यानी बूछाड़ की एक बहुत बड़ी बूछाड़ उन पे जारी हो गई मुकदमा शायरी शायरी पे। अहले लखनऊ इस मामले में छोई मुई से कम नहीं थे। अहले लखनऊ ने भी यानी अपने आप को दूर नहीं रखा, वो मामूली सी तनकीद के भी रवादार नहीं होते। इन्हें ये वहम हो गया था कि ये सारी कार्रवाई उन्हीं की मुखालफत में की गई है। फिर क्या था, हर तरफ से नुक्ताचीनी और तन तरीज की सदा आने लगी। और पंच में एक तवील सिलसिला मज़ामीन मुकदमा के खिलाफ मुद्दत तक, यानी इसके खिलाफ मुद्दत तक बहुत देर तक ये अखबार निकलता रहा, मज़ामीन निकलते रहे, रसाले निकलते रहे। जो अदबी तनकीद का अजीब गरीब नमूना था वो सिर्फ बेतकी और मुहम्मल एतराज़ात ही का मुजमन था, बल्कि फ़खड़ और बफेतियों तक नौबत पहुँच गई थी। यानी इस शेर से आपको पता चलेगा कि क्या हालत थी हमारे अबतर हमारे हमलों से हाल ही का हाल है। जो हमने हाल ही पे हमले किए हैं, हाल ही के लिखी लिखाई पे जो हमने हमले किए हैं, उससे उसका हाल जो है वो बदतर हो गया, अबतर हो गया है। मैदान पानीपत की तरह पामाल है, जिस तरह पानीपत के जो मैदान पामाल हो गए हैं, जहाँ पे पानीपत के मैदान में जिस तरह से पानीपत की लड़ाई चली थी, अंग्रेजों ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, तो यानी मासूम बेचारों को वहाँ पे कत्ल आम किया था। इसी तरह से जिस तरह से उस पानीपत का वो मैदान में जिस तरह से पामाल हो चुका था वो वहाँ पे मासूमों की जान निकाली गई थी वहाँ पर, इसी तरह से इन्होंने हाल ही पे भी इस तरह से हमले किए। तो इससे समझ लीजिए कि इस अनुमान के तहत क्या कुछ खराफात न बिकी गई। मौलाना ये सब कुछ सहते रहे लेकिन कभी एक लफ्ज़ ज़बान से न निकाला। क्या पूछते हो क्यों कर सब नुक्तची हुए चुप, सब कुछ कहा उन्होंने पर हमने दम न मारा। लेकिन आखिर एक वक्त आया कि नुक्तचीनों की ज़बानें बंद हो गई और वही लोग जो इन्हें शायर तक नहीं समझते थे उनकी तकलीद उनकी नकल करने लगे। गुलते बहुत यारों ने मचाया पर गए अक्सर मान। हमें इस शायर से पता चलता है कि मौलाना हाली उनका जवाब दे देते हैं कि उन्होंने बहुत शोर मचाया था लेकिन अक्सर और बेशतर आखिर पर उन्होंने हमें ही मान लिया। मुखालफत सहने का उनमें अजीब व गरीब मादा था, यानी उनमें एक बर्दाश्त करने का मादा था। कैसा ही इख्तिलाफ हो वो सब्र के साथ सहते रहते थे, जवाब देते थे लेकिन हुज्जत यानी झगड़ा नहीं करते थे। बाज़ औक़ात नामाकूल यानी बेमाना बात पर और कट हुज्जती यानी अपनी बात पे टके रहना पे गुस्सा आता था, लेकिन ज़बत से सब्र से काम लेते थे। ज़बत और एतदाल उनके बहुत बड़े अवसाफ खूबियाँ थी। ये दो खूबियों उनके कलाम में भी कामिल तौर पर पाए जाते हैं। ये अदीब यानी शायर का बहुत बड़ा कमाल है। ये बात सिर्फ उसातिज़ा के कलाम में पाई जाती है, वरना जोश में आखिर आदमी सररिश्ता एतदाल मियाना रवि का इतदाल खो देता है और बहक कर और दूर और यानी मुड़कर दबकर कहीं का कहीं निकल जाता है और बजाय कुछ कहने के चीखने चिल्लाने सा लगता है। इस तरह से हमने सफ़े नंबर 69 तक हमने ये पढ़ाई आज की है। इंशाल्लाह हम इसकी पढ़ाई इसे आगे जारी रखेंगे। कल आज इतना ही। खुश रहे, शाद रहे, शादाब रहे। स्टे होम, स्टे सेफ।